پاکستان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آج بنگلزئی صاحب کو اظہار خیال کا موقع دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سرفراز احمد بنگلزئی ہے۔ میرا تعلق ڈسٹرکٹ مستونگ کے علاقے اسپلنجی سے ہے۔ 1991 سے لے کر 2009 تک میں محکمہ خوراک میں سرکاری ملازم رہا ہوں اور اپنی اچھی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس اپنا ذاتی گھر، جائیدادیں، گاڑی تھی اور میرے بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ 2009 میں چند لوگوں کے بکاوے میں آ کر اپنے ساتھیوں سمیت مسلح جد و جہد میں شامل ہوا۔ اس دوران میں نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اپنے قریبی ساتھیوں سمیت اپنے قریبی رشتہ داروں اور 2 بیٹے بھی میں نے قربان کیے۔ جب ہم نے یہی سمجھا کہ میں بلوچ حقوق کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں، اس کام میں جب میں شامل ہوا، میں عبادت سمجھ کر اس تحریک کا حصہ بنا۔ لیکن جب ہمیں پتہ چلا، ارد گرد ہم نے اپنی نظر دوڑائی، یہاں پر صرف کچھ چند لوگ ہیں جو اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارد گرد مزید ہم نے نظر ڈالی جہاں پر اس میں تمام تنظیمیں بھتہ خوری، منشیات فروشی اور لوگوں کے اغوا برائے تاوان، بیرون ممالک کے فنڈز لے کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہم نے محسوس کیا کہ یہاں قومیت اور اس سرزمین کے لیے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے عام معصوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں۔ بلوچوں کا خون بلوچوں کے ہاتھوں کروایا گیا اور اب بھی جاری ہے۔ اس تمام سازشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ہمسایہ ممالک جہاں پر کافی لوگ اس وقت بھی بیٹھ کر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم نے اس تحریک سے علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہوئے قومی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں اور میرے ساتھ 70 ساتھی قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک میں یہ کہوں کہ لوگوں کو صرف اور صرف ایک ہی ضلع میں آواران میں 2014 میں ایک ہی تنظیم نے 155 ایسے معصوم اور عام بلوچوں کا خون بہایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جنہوں نے صرف اور صرف بھتہ دینے سے انکار کیا تھا۔ اسی طرح جتنی یہ تقریباً 20 سالوں سے تحریک چل رہی ہے، اس 20 سالوں کے دوران ہزاروں ایسے بلوچ ہیں جن کو ناحق قتل کیا گیا ہے۔ ظلم کی ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے۔ اگر اس کا کچھ بھی حصہ میں یہاں بیان کروں تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ لوگ صرف اور صرف بیرون ایجنڈوں پر کام کر رہے ہیں، جیسا کہ شہید جنرل سرفراز کا ہیلی کریش ہوا، جو کہ ایک تکنیکی خرابی تھی جس کا میں خود چشمدید گواہ ہوں۔ اس کے بعد براس نے اس کی ذمہ داری لی، جو کہ صرف اور صرف انڈیا کے کہنے پر اور انڈیا سے پیسے لے کر وہ یہاں پر اپنے ہی بلوچوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ساتھی سرمچار اس دنیا میں اب نہیں رہے ہیں، ان کے خاندانوں کی جو حالت ظاہر ہے، خاص کر جتنے لوگ ہمسایہ ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ درپدر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں انہیں بھی دعوت دوں گا کہ وہ بھی آئے، اور ریاست سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھی راہ ہموار کی جائے۔ اس کے ساتھ اس تحریک میں خواتین کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس جنگ کو خواتین کو اس جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ہماری بلوچی روایات ہے کہ خواتین کو ایک احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر خواتین کو جنگ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ خواتین ماں، بہن اور بیٹی شریک حیات کا روپ رکھتی ہے۔ ان کو صرف اور صرف اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے
تاکہ نوجوانوں میں جذبات پیدا ہوں. کیا ان کے پاس ان کے مرد ختم ہو چکے ہیں یا ان کے مرد نہیں ہیں جو یہ اب خواتینوں کا استعمال کر رہے ہیں صرف اس مقصد کے لیے تاکہ بنایا معصوم بلوچ میں جذبات ابھار. 15 سال میں نے کسی بھی نہیں کیے لیکن جو کچھ میں نے محسوس کیا پچھتاوے کے علاوہ میرے پاس اس طرح کیا ہوا. گلزار امام کو ریاست نے گرفتار ایک گرفتار شخص سے بھی ہم میں تمام بلوچوں سے اپیل کروں جو اس تحریک کا حصہ بنے ہوئے ہیں وہ ان سے رہے. کوئی حقوق کی نہیں ہے صرف لوگوں کو بنا کا ہمارا تجربہ رہا. ہم نے کچھ دیکھا کچھ محسوس کیا درپدر کی زندگی گزاری. ہمارے بچے نہ تعلیم حاصل کر سکے نہ ان کو دی جا سکی. لہذا ریاست کی اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کے ایک ایسا راستہ کر امیدوار شامل ہو کر قوم اور اپنے آج جتنے بیٹھے خاص کر افغان ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے بنگلے ان کو دیے یہی پہلے یہی کہتے ہم کسی بھی میں اپنے اور اپنی زمین نہیں چھوڑ کے بیرون نہیں بھاگیں گے لیکن آج اپنے ملک کی خود سکے بیرون ملک کر خود کی زندگی لیکن آگے میں استعمال کیا ہے. جب تک میں یہاں تھا کوئی علم معلوم نہیں تھی. جب میں وہاں میں نے دیکھا سامنے گزری ہیں میں ان تمام ساتھیوں کا میڈیا کا حکومت پاکستان کا شکر ہوں کو بھی پیغام دوں خدا رہا ایسے ماحول سے اپنے بچوں کو تعلیم کوئٹہ میں نگراں صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی اور دیگر کی نیوز کانفرنس جاری ہے. بلوچ رہنماؤں کا ریاست پر اعتماد بڑھ رہا ہے اور وہ لوگ جو باغی ہو چکے تھے وہ واپس آ رہے ہیں. اسی سلسلے میں اس وقت نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے اور گلزار امام شمبے نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا تھا. جان اچکزئی نے یہ بھی کہا کہ اس وقت دیگر عمائدین ان کے ساتھ موجود ہیں جو ریاست سے متنفر ہو گئے تھے, ریاست مخالف سرگرمیوں میں تھے, لیکن اب انہوں نے دوبارہ سے قومی دھارے میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. نگراں صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی اور دیگر کی نیوز کانفرنس جاری ہے. اس سے پہلے کہ آپ سوالات کریں میں انٹیریئر منسٹر بلوچستان جناب زبیر جمالی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چند الفاظ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریف اللہ کی جو سب جانوں کا پالنے والا ہے, بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. میں حکومت بلوچستان, حکومت پاکستان اور ساری عوام کی طرف سے سرفراز بنگلزئی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یہ میں ان کو پھر انہوں نے خود بتایا, جان صاحب نے بھی, انہوں نے بھی, یہ مٹی ہماری ماں ہے اور اس میں جتنے بھی ہم لوگ ہیں جو بھی ہیں ہمارے, ہم خود, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہم سب ایک ہیں. اور جب تک ہم یہ چیز جو کرپشن کا ناسور انہوں نے بولا بنگلزئی صاحب نے, سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی یہ ہے, اس کے بعد علم کا وصول ہے اور شعور جتنا بھی ہو اپنا تعلیم و تربیت پہ آپ لوگ ضرور غور و فکر کریں. اس کے ساتھ ہی میں پھر سوالات کے لیے کچھ ٹائم کم ہے تو ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم جی. بہت شکریہ آپ کا. ابھی میں مائک اوپن کرتا ہوں سوالات کے لیے پلیز. السلام علیکم. بلا شبہ آج بلوچستان کے لیے بڑا اہم دن ہے. سرفراز صاحب آپ
आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप मुसल्ला शोरिश को छोड़ कर और इस वक्त कौमी धारे में आप शामिल हो गए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ अपने लोगों के दरमियान अपनी सरजमीन में आकर। काफ़ी अरसा 15 साल तक मैं अपने लोगों से काफ़ी दूर रहा, अपनी सरजमीन से दूर रहा। मैं यहाँ आकर काफ़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। जी आप प्लीज़। सर क्या मैकेनिज़्म है, ये मुसल्ला लोग हैं सर, ये डायरेक्ट प्रोसेस में आए हैं, तो रियासत पाकिस्तान की जानिब से क्या मैकेनिज़्म बनाया गया है? अगर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम वो तंजीम छोड़ के ये ज्वाइन कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के पास क्या मैकेनिज़्म है? अगर आज कोई लड़ाई करता है तो कल कला को वो कौमी दायरे में शामिल होकर वैसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। रियासत पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रही है, और क्या ये जो आज लोग आए हैं इसका बुनियादी मैसेज क्या है सर, अगर रियासत इसमें स्किप है? थैंक यू। इसका जवाब मैं दूंगा। अगर बंगुल्ज़ई साहब से कोई सवाल प्लीज़। सवाल मेरा आपसे ही है कि जिस तरह बंगुल्ज़ई साहब कौमी धारे में शामिल हुए, क्या और लोगों से राब्ते में है गवर्नमेंट? बंगुल्ज़ई साहब से कोई सवाल आप प्लीज़। अच्छा सरफराज, आप बताएं 14-15 साल आप तहरीक में रहे, इस दौरान आपने खुद जिक्र किया कि बहुत से आपके अपने अजीज और क़ारिब भी इससे मारे गए, और इस यहाँ पे आपने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया। तो ये जो बदला लिया जा रहा था, जो फंडिंग उनकी हो रही थी, क्या जो सरमचार जो आपके साथ थे या दूसरे उनके फिर फैमिली का क्या होता वहाँ पे, क्या हालात थे? जी हाँ साहब, एक आगे इसको बनाएंगे। आपने जिक्र किया कि भारतीय मुदाखलत हो रही थी, भारत इसमें सपोर्ट दे रहा था इस तहरीक को। ये बड़ी मुसल्लह तहरीक थी, बड़े अहम मनसब पे आप इतने अरसे फाइज रहे। इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी और कैसे हो रही थी? असल मसला ये कि इंडिया से हो रही थी तो कैसे हो रही थी, आप तक पैसा पहुँचता कैसे था, लोगों को रिक्रूट किया कैसे जाता था? और इसमें सरफराज साहब एक और बात, आपने 15 साल जो मुसल्लह जदोजहद की है उसमें बहुत से लोगों को आपने निशाना बनाया होगा। उनकी फैमिलीज के हवाले से इस वक्त आपका रवैया क्या है? आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपको कोई नदामत फील हो रही है उन फैमिलीज के हवाले से? जी हाँ, इस सवाल से बिल्कुल हमें जो है नदामत महसूस हो रही है। मैंने पहले ही ये अर्ज़ किया कि मेरे पास पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग, चाहे इस तरफ नुकसान दोनों तरफ से काफ़ी हुआ है, दोनों तरफ से नुकसानात काफ़ी हुए हैं। मैं उन तमाम लोगों से माफ़ी का भी तलबगार हूँ जिन लोगों को हमारी वजह से तकलीफ़ें उठानी पड़ी, उन्हें दुख उठाना पड़ा। और पहला सवाल क्या था? फंडिंग। जहाँ तक फंडिंग के बारे में आपने सवाल किया, बिल्कुल इंडिया से इनको फंडिंग की जाती है, इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है। इनके तरीक़ाकार हमसाया मुल्कों में बने हुए हैं, और इसके अलावा मंशियात फरोशी भी करते हैं, मंशियात लूटते भी हैं, लोगों को अगवाकारी भी करते हैं, भत्ताखोरी भी करते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा, जहाँ कहीं पर भी तरक्याती काम होते हैं फौरी तौर पर ये लोग तरक्याती काम करने के लिए नहीं छोड़ते जब तक उन्हें वहाँ से भत्ता ना मिले। रिक्रूटमेंट का भी एक सवाल, और ख़ानदानों के बारे में जैसे आप लोगों ने सवाल किया कि जितने सरमचार इस जंग के दौरान मारे गए हैं उनके ख़ानदानों की हालत क्या है, मैं खुद देख के आया हूँ। उनके ख़ानदान एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दरपदर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसा कि आम मासूम बच्चों को जो है वरगला कर उन्हें फिदाई के लिए भेजा जाता है। ग्वादर में जो सरबुलंद नामी एक सरमचार ने एक फिदाई किया था, ब्लास्ट किया था, उनकी फैमिली, उनकी वालदा को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। काफ़ी दीगर दोस्तों ने उन्हें देखा, वो वहाँ पर एक दरपदर की ठोकरें खा रही है, जहाँ भी जाती है रोती फिरती है कि मैंने अपने बेटे को तालीम के लिए भेजा था, इन लोगों ने उन्हें वारगला कर उन्हें जो है हमसे जुदा कर दिया। सरफराज साहब, आपने मसला जदोजहद किए और आप कौमी दायरे में आकर शामिल हो गए थे, तो क्या आपने जिक्र किया कि मैं एक सरकारी मुलाजिम था, आप सरकारी मुलाजमत की तरफ जाएंगे या मुल्क के लिए कुछ कर लेंगे? जी, हमारी तरफ से जो कुछ हुआ इंशाल्लाह हम मुल्क की खिदमत करेंगे। मेरा सवाल थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ्लो से मुख्तलिफ है, लेकिन रिलेटेड ज़रूर है। अफगानिस्तान की आपने बात की, वहाँ पे ट्रेनिंग्स के हवाले से,
वहाँ हुकूमत चेंज हुई है, माजी में जो हुकूमत रही ज़ाहिर है कि वो नेटो ज़ेर असर रही और अब वहाँ पे अब वही हुकूमत कायम है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या देखते हैं आप? मैं इसका जवाब इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सेम वही चीज़ है। पिछली हुकूमत भी इनकी उसी तरह जो है कुमक कर रही थी, इन्हें गार्ड्स फराम कर रहे थे, इन्हें जगह दिया था, और जो अब की हुकूमत है वो भी सेम इसी तरह, अब भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। हालिया दिनों में आप लोगों ने देखे होंगे इनकी वीडियोस, जो ख़ास तौर पर मैं बशीर ज़ेब का नाम लूँगा, जो BLA के कमांडर हैं, उनकी वीडियो क्या चिल्तन में बनी हुई थी? नहीं, वो भी अफगानिस्तान में बैठकर वीडियो बनाकर और लोगों को ये शोषा करके ताकि आम मासूम बलोचों को बेवकूफ़ बनाया जाए। अब भी उन्हीं के साथ वही कुछ मदद और वही कुमक हो रही है जो पिछली हुकूमत में की जा रही थी। सरफराज, ये आपने कहा कि 70 लोग आपके साथ शामिल हैं जिन्होंने अस्करियत पसंदी का रास्ता छोड़ा है। मजीद कितने लोग कौमी दायरे में शामिल होने जा रहे हैं, क्या बता सकेंगे कुछ? जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी लोग तैयार हैं, बाकी लोग भी तैयार हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि रियासत उनके लिए एक पॉलिसी बनाए, आने वालों को वेलकम कहे। जैसे हम आए, हमें रियासत ने सीने से लगाया, हमने यहाँ हमें काफ़ी इज्जत दी, एहतराम दिया, और रियासत एक ऐसी पॉलिसी बनाए, आने के लिए काफ़ी लोग वापस आने के लिए तैयार है। वो आकर यहाँ अपने कौम और अपने सरजमीन की खिदमत करना चाहते हैं। जी, सिर्फ एक सवाल का मैं एडिशन कर लूँ, सिर्फ एक सवाल का एडिशन करूँ। देखिए, रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। जो लोग मुसल्लह जो है वो पाकिस्तान को, हमारे आइन को, हमारी रियासत को तस्लीम करते हैं और कौमी दायरे में आना चाहते हैं, तो उनको हम वेलकम करेंगे। और ये एक रियासत की माँ जैसा दिल है जो ये पॉलिसी उस पर मबनी है। हालांकि बहुत से सवालात लोग कर सकते हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान उन लोगों को वेलकम करेगी जो इस कौमी दायरे में आएंगे। जिस तरह शंबे साहब को, बंगुलज़ई साहब को हमने वेलकम किया, उनके साथियों को वेलकम किया, जो भी रियासत पाकिस्तान की इस फराखदिली से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम। जी, आखिरी सवाल प्लीज़। उसके बाद आप डिमांड करते हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि जी अभी गुलजार गिरफ्तार में हैं तो मुझे सरेंडर कर देना चाहिए? ये किसी ने मोटिवेट किया या आपने समझा कि जी अभी मैं गलत रास्ते पे था, आज फिर उसके बाद आपको रहना है? देखिए, गुलजार इमाम का मसला और मेरा मामला में काफ़ी फ़र्क है। वो पकड़े गए थे, लेकिन रियासत ने जो हस्न सलूक किया उनके साथ, वो भी खुद उनसे काफ़ी मुतासिर हुए। मैं जो आया हूँ उनके साथ मेरे नज़रियाती इख्तिलाफात थे। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ख़वातीन का इस्तेमाल बलूच इस जंग में, और काफ़ी ऐसे वाक़यात होते हैं जो ये इंडिया के कहने पर हादसात होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और जब हम दोनों इकट्ठे हुए, 250-300 तकरीबन लोग थे हमारे पास। गुलजार इमाम के आने के बाद हमारे 70 साथी ड्रोन हमलों में मारे गए और 70 लोग मेरे साथ आए हैं। बाकी लोग भी इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि रियासत उन्हें वेलकम कहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। आपको बताएं कि कोयटा में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई और दीगर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत है। बलूच रहनुमा तकरीबन 40 के करीब रहनुमा जो हैं कौमी धारे में वापस आए हैं, और जो पहले दहशतगर्दों के साथ मिले थे, अब उन्होंने जो है तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए अब कौमी धारे में आने के लिए हामी भरी है। इस सिलसिले में यहाँ पर मौजूद हैं और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुत्तला कर रहे हैं। BLA भारतीय शह पर अपने बलोच भाइयों का खून बहा रही है, जान अचकज़ई ने इब्तदाइये में ये कहा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ बलोच रहनुमाओं ने भी इजहार ख्याल किया है।
अपडेट करें आपको। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की बलोच रहनुमाओं को रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है, ऐसा कहना है जान अचकज़ई का। शमूलियत अख्तियार करने वालों में कलदम BNP के कमांडर भी शामिल हैं। कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बलोच ख़वातीन को इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं, ऐसा कहना है बलोच रहनुमा का। BNA पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में ख़वातीन को भी इस्तेमाल कर रही है। 15 साल अपने लोग और सरजमीन से दूर रहा, अपने लोगों में वापस आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। BNA के कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। कलदम BNA भारतीय शह पर अपने बलोच भाइयों का खून बहा रही है, ऐसा कहना था अचकज़ई का। भारत बलूचिस्तान में हालात ख़राब कर रहा है और दुश्मन जानते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से होकर जाता है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है, ऐसा कहना है जान अचकज़ई का। उन्होंने कहा कि मकार दुश्मन हमारी धरती को जलाना चाहता है। बलूचिस्तान की कौम परस्त कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात कोशिश की है। बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बलोच ख़वातीन को इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से बलोच ख़वातीन को भी इस काम में शामिल किया गया है। BNA पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में ख़वातीन को भी शामिल कर रही है। अपने लोगों में वापस आकर खुशी महसूस हुई। बलोच रहनुमाओं ने कहा कि अपने इलाके में अपने लोगों में वापस आकर खुशी महसूस हो रही है। BNA के कमांडर 70 साथियों समेत वापस आ गए हैं, कौमी धारे में शामिल हो गए। कलदम BLA भारतीय शह पर मज़मूम मकासद के तहत दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। भारत बलूचिस्तान में हालात ख़राब कर रहा है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। जान अचकज़ई ने कहा कि बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। मकार दुश्मन हमारी धरती को जलाना चाहता है। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात काम किया है। बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। मकार दुश्मन हमारी धरती को जलाना चाहता है। बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोचों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कहना है बलोच रहनुमा का। बलोच ख़वातीन को इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं। बजट का आधा हिस्सा भी बलोच हुकूमत को नहीं दिया जाता। BNA पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में ख़वातीन को भी इस्तेमाल कर रही है। बलोच में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। अपने लोगों में वापस आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। BNA के कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। कौमी धारे में शामिल होने पर खुशी महसूस कर रहा हूँ, ऐसा कहना है बलोच रहनुमाओं की जानिब से। कलदम BNP भारतीय प्रोपेगेंडे में मुलव्विस हैं। भारत बलूचिस्तान में हालात ख़राब कर रहा है, ऐसा कहना था जान अचकज़ई का। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात कोशिशें की हैं। दुश्मन जानते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से होकर जाता है। मकार दुश्मन हमारी धरती को जलाना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात कोशिश की है। बलूचिस्तान के कौम परस्त कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। हमारी सरजमीन के बेटे को भारत के मकरू अज़ाइम का इल्म होने के बाद कौमी धारे में आने का रास्ता मिल गया है और 70 बलोच रहनुमा और अफराद हैं जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हो गए थे, लेकिन हकीकत सामने आने के बाद उन्होंने कौमी धारे में आने का फ़ैसला कर लिया है। आपको बताएं कि कोयटा में वापस आने के लिए बाकायदा तौर पर जान अचकज़ई की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें बलोच रहनुमा भी मौजूद हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की सूरत हाल को बनाने के लिए पाक फ़ौज ने काविशें की हैं, लोगों का एतमाद बहाल किया है। बलोच रहनुमाओं का एतमाद अब बहाल हो रहा है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं, हमारी नुमाइंदा राशिदा सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी राशिदा सियाल, एक ऐसे वक्त में जब दहशतगर्दी उरूज पर है और पाकिस्तान में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, बलोच रहनुमाओं की इतनी बड़ी तादाद में वापसी, कौमी धारे में वापस आने की सूरत हाल को आप किस तरह से देख रही हैं? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक ऐसे वक्त पर ये डेवलपमेंट हुई है जब हम देखते हैं कि मुल्क भर में दहशतगर्दी की एक ताज़ा लहर सर उठा रही है और मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमलों में इजाफा हुआ और शहरियों पर भी। तो ऐसे वक्त में इस डेवलपमेंट का और बिलखसूस बलूचिस्तान जो कि एक बड़ा सेंसिटिव जो है वो हमारा सूबा रहा है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सफ़र किया है दहशतगर्दी के हवाले से बलूचिस्तान ने, KPK ने। तो बलूचिस्तान के अंदर ये डेवलपमेंट होना कि एक कमांडर जो कि बलूच नेशनल आर्मी BNA के कमांडर हैं सरफराज बंगलज़ई, उसने आज ये ऐलान किया है कि वो सरेंडर करते हैं अपने 70 साथियों के हमरा
اور نہ صرف سرنڈر کیا ہے بلکہ ریاست پاکستان کی اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے دشمن کی ان سازشوں کو اور ان جو وہاں سے جو تانے بانے بنے جا رہے تھے ان کو بھی بے نقاب کیا ہے کہ کس طرح ہندوستان پاکستان کے امن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، کس طرح ہندوستان ان کو فنڈنگ دیتا ہے، بھارت سے فنڈنگ ہوتی ہے اور پھر کس طریقے سے یہاں پر کارروائیاں کی جاتی ہیں، ان کو مکمل طور پر انہوں نے بے نقاب کیا. اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کے لیے ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور عوام کے لیے بھی بڑی ایک مثبت پیش رفت ہے کہ بڑی تعداد میں دہشت گرد جو ہیں وہ اگر قومی دھارے میں آتے ہیں اور وہ اپنے جو ان کے پاس ہوا اس کے اوپر نہ صرف وہ پچھتا رہے ہیں بلکہ اب وہ آئین پاکستان کے اوپر مکمل عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو ریاست کا قانون ہے اس کا احترام کرنے کو تیار ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پیغام بھی یہ ہے کہ جو ہمارے تجربات ہیں جو ہم نے دیکھا وہ بڑے تلخ تجربات ہیں اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ بندوق جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور والدین جو ہے جو پاکستانی شہری ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اس سے دور رکھیں. ایک جانب تو انہوں نے جو ہندوستان کی سازشیں ہیں اور جو وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی بے نقاب کیا اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا بھی اس کے اندر بہت ایک اہم کردار ہے اور اس کی بات بھی کی. اور پھر یہ بات کچھ 2-4 نکات بڑے اہم ہیں جس میں ایک تو یہ کہنا کہ بھارت کی فنڈنگ کے اوپر پاکستانی شہریوں کا اپنے بھائیوں کا جس طریقے سے خون بہایا جا رہا ہے وہ بات. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو بلوچوں کو ریاست کے خلاف استعمال کرنے کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی ہتھ کنڈا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کھل کے بات کی ہے کہ کس طریقے سے بھارت بلوچستان کے حوالے سے بالخصوص اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج سے نہیں یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہندوستان کی یہ کوشش رہی ہے اور ہندوستان یہی سازشیں کرتا رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر انریسٹ رہے اور پھر ظاہر ہے جب ایک پاکستان کے اہم ترین صوبے میں ہوگا تو اس سے پھر پورا ملک جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ گوادر کے اندر کئی ترقیاتی منصوبے جب ہوتے تھے یا ابھی بھی ایون ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی دہشت گرد کس طریقے سے وہاں ان کو خراب کرنے کی اور ان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز جو انجینئرز ہیں ان کے قافلوں پر اٹیک کیا جاتا ہے, جو چینی منصوبے ہیں بلوچستان میں گوادر میں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر مختلف ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے ہیں اور اس سے ایک جو سیکٹیرینزم جو ہے جو فرقہ واریت ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ساری اسی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں کہ اسی قسم کے واقعات کیے جائیں, وہاں پر شیعہ سنی کے فسادات کروائے جائیں, وہاں پر جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں کو ٹارگٹ کیا جائے, اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ اس سے پورے ملک میں ایک بد امنی کی فضا جو ہے وہ قائم ہو اور پھر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہ ہو سکے. تو یہ یقیناً دشمن کی سازشیں ہیں اور یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, نہ یہ کوئی نئی بات ہے. یہ کئی برسوں سے ہندوستان اس قسم کی کاوشیں کرتا اور آج یہ سرفراز منگلزئی جس طریقے سے کنفیشنز کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے کئی دہائیوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں. ریاست نے بڑا پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس نے سرنڈر کیا ہے اس کو ریاست نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلکم, جسے ہم خود کہہ رہے ہیں ویلکم بھی کہا ہے اور ریاست کی جانب سے ایک دروازہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھلا رکھا گیا ہے ان عناصر کے لیے کہ جو گمراہ ہو چکے ہیں یا جو دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں کہ اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں, اگر وہ پاکستان کے آئین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے قانون کا احترام کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی سرزمین کے ساتھ لائلٹی دکھانا چاہتے ہیں اور اگر وہ گمراہ ہو کر جو کچھ کر چکے ہیں اس کے بعد وہ واپسی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے واپسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے پن کی بات ہے جو ریاست کی جانب سے کی جا رہی ہے. اور پھر یہ جو بلوچوں کی حوالے سے خاص طور پر ایک آپ
देखें कि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया कि जी बलोच जो हैं वो खुदा न खस्ता सारे के सारे जो हैं वो एंटी स्टेट हैं। इसमें कोई हकाइक नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक रियासत और बलोचों के दरमियान नफरत और दूरियां पैदा करने की बात है जो कि दुश्मन की जानिब से की गई। और इसके अंदर अफगानिस्तान का किरदार बड़ा अहम है, इसके अंदर जो है वो हिंदुस्तान तो है ही है। हमारे सामने ये मिसाल है कि जब कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया तो वो भी बलोचिस्तान के इलाके से गिरफ्तार किया गया और फिर उसने किस तरीके से कन्फेशन किए भारतीय कमांडर जो कि हाजिर सर्विस था कि कैसे उसने बलोचिस्तान के अंदर आकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको सबूताज करने के लिए और कैसे उसने यहाँ फंडिंग की और लोगों को ट्रेनिंग दी और लोगों को जो यहाँ के फैसिलिटेटर्स थे, सहूलतकार थे, उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान के अंदर अमन को ख़राब करने की कोशिशें की। तो ये बहुत एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए और पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ऐसे वक्त पर है कि जब दहशतगर्दी सर उठा रही है। और आप ये देखें कि इसके अंदर दो चार और चीज़ों का भी जिक्र सरफराज बंगलजई ने किया है, जिसमें मनशियात फरोशी की बात की है, जो कि हमें मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के आने से कबल भी अफगानिस्तान की जो 70-80% इकॉनमी है वो पॉपी कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड करती थी और वहाँ मनशियात का एक बहुत बड़ा जो है वो नेटवर्क वहाँ पर था। और अब दोबारा जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो वहाँ पर ये खदशात, मनशियात या फिर असलहा इस किस्म की जो कारोबार आप कह सकते हैं वो वहाँ पर एक मरतबा फिर बहुत पीक पर है। तो उससे जाहिर है फिर हमसाया ममालिक भी सफ़र करते हैं और फिर जिस तरीके से यहाँ लोगों को अगवा किया जाता है, कुछ को अगवा करके दहशतगर्दी के मजमूम मकासद में इस्तेमाल किया जाता है और फिर कुछ लोगों को अगवा बराए तावान भी किया जाता है और वो पैसा जो तावान की मद में हासिल किया जाता है वो पैसा दहशतगर्दी के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो बात ये की है, दूसरी बात उन्होंने खवातीन के हवाले से की है जो कि बड़ा अहम पहलू है कि किस तरीके से वहाँ पर ना सिर्फ इनकी जो दहशतगर्दों की फैमिलीज हैं वो तो सफ़र कर ही रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये कालादम तंजीमें हैं ये अब खवातीन को इस्तेमाल कर रही हैं दहशतगर्दी के कामों में। खवातीन के ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए हैं बाकायदा तौर पर जहाँ पर उनको ट्रेन किया जाता है सुसाइड बॉम्बिंग के हवाले से। और हमने ये देखा, हमारे सामने ये वाकयात हुए हैं ऐसे कि जिसमें आपको याद होगा मस्जिद के अंदर एक धमाका हुआ था जिसमें एक खातून जो थी उन्होंने ये किया था। तो इस किस्म के जो वाकयात है उनको उनका पर्दा भी चाक किया है। और हिंदुस्तान के लिए मैं ये कहूँगी कि ये एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की जानिब से ये एक बहुत बड़ा डॉसियर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पहले भी इस किस्म की डॉसियर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले भी कर चुका है और अब ये तो डायरेक्ट उन लोगों के कन्फेशंस हैं जो इन कामों में इस्तेमाल होते रहे हैं, जो हिंदुस्तान के साथ ये मिलकर ये चीज़ें करते रहे हैं। तो अब ये कन्फेशंस के ऊपर पाकिस्तान को बिल्कुल चाहिए, नेक्स्ट स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए, लायामल यही होना चाहिए कि ये हकाइक, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, ये चीज़ें, ये तमाम सबूत जो हैं इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, अमेरिका के साथ और जो दूसरी आलमी बरादरी है यूएन के साथ एक मरतबा फिर पाकिस्तान को चाहिए कि इसको मामले को उठाए कि किस तरीके से पाकिस्तानी शहरियों को वरगला कर और उनको गुमराह करके हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो कि हमसाया मुल्क है वहाँ पर किस तरीके से अमन को ख़राब करने की कोशिशों में लगा हुआ है। और ये कोशिशें मुसलसल हो रही हैं और फिर हिंदुस्तान ढंडोरा ये पीटता है, ड्रामा ये करता है कि जी हम तो दहशतगर्दी का शिकार हैं और दहशतगर्दी तो पाकिस्तान से हो रही है। तो ये झूठ बेनकाब होते हैं, हर दफ़ा बेनकाब होते हैं। 20 ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिसमें हमें नज़र आता है, सामने सबूत शवाहिद सारे मौजूद होते हैं, चाहे वो चाइनीज़ सिविलियंस इंजीनियर्स के ऊपर हमलों के वाक़यात हों या पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के वाक़यात हों, कि जिसमें बिल्कुल हमारे पास शवाहिद खुले मौजूद हैं कि किस तरीके से भारत ये सब कुछ कर रहा है और पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के दर पे है। और पाकिस्तान को वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर तरक्की हो, हिंदुस्तान नहीं चाहता है कि यहाँ पर अमन हो, यहाँ पर फिरकावारियत ख़त्म हो। और वो वक्तन फवक्तन इस तरह से लोगों को गुमराह करके और उनको पैसे देकर और उनको फंडिंग देकर और इस्तेमाल करता है अपने मजमूम मकासद के लिए। राशिदा सियाल, जिस तरह से आज ये 70 के करीब वो बाशिंदे पाकिस्तान के जो मुतनफ़िर हो गए थे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने हथियार उठा लिए थे वो वापस आए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में और ऐसे नौजवान जो मुल्क से इस वक्त राहें फेर चुके हैं या आँखें फेर चुके हैं वो भी इनको देखते हुए, इनकी तकलीद करते हुए कौमी धारे में शामिल हो सकेंगे।
ही है। और ये अभी सरफराज मंगलजई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी कर रहे थे, और आपने देखा कि जान अचकजई ने भी इस हवाले से कहा कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो वापस आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वापस आकर पाकिस्तान के आइन पर अमल करते हुए और एक आम जो शहरी की जिंदगी है, अपनी जिंदगी नॉर्मल एक अपनी लाइफ गुजारें। और उनकी फैमिलीज क्योंकि सफर कर रही हैं, वो खुद जिस तरह उन्होंने बताया कि लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं, जाहिर है एक जगह से दूसरी जगह वो छुपते फिरते हैं जब इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में मजीद कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो वापस आएंगे, और रियासत उनके लिए पॉलिसी भी बना रही है ताकि उनकी वापसी का जो है वो रास्ता खुला रखा जाए। जी, राशिदा सियाल अपडेट कर रही थी। निगरान सूबाई वजीर जान अचकजई के हमरा दीगर कबायली अमायदीन और वो अफराद जो कौमी धारे में शामिल हुए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शामिल करेंगे ब्रेक, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।